کائنات میں دو مخلوقات ہیں، ایک نوری ہے، ایک ناری ہے۔ ایک وہ جو نور سے بنی ہے، ایک وہ جو آگ سے بنی ہے۔ جو نوری مخلوقات ہے اس میں ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں اور سارے کے سارا نور چھپا ہوا ہے۔ آپ کو جہاں محبت نظر آئے گی، خلق نظر آئے گا، سخاوت نظر آئے گی، انسانیت کی محبت، انسانیت کا عروج اور مخلوق کی خیر خواہی جہاں بھی نظر آئی، سمجھ لیں کہ نوری مخلوق اور نور ہی نور ہے۔ اور جہاں کینہ، بغض، نفرت اور جادو اور کالی دنیا اور کالے لوگ اور بیماریاں اور کالے روگ نظر آئیں گے تو سمجھ لیں کہ یہ ناری دنیا ہے، یہ آگ کی دنیا ہے۔ نور ٹھنڈک ہے، نور روشنی ہے، آگ جلا دیتی ہر چیز کو، آگ ہر چیز کو راکھ کر دیتی ہے اور آگ کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، بس صرف آگ ہوتا ہے اور آگ کے انگارے ہوتے ہیں اور آگ کے شعلے ہوتے ہیں اور ہر چیز جل جاتی ہے۔ ہم اپنی وجود کو ذرا بیٹھ کے غور سے دیکھیں، ہمارے وجود میں کون سی دنیا ہے؟ نوری دنیا ہے یا ناری دنیا ہے؟ ہمارے وجود میں کون سی دنیا ہے؟ اور ہمارے وجود میں کون سا نظام؟ ہمارے وجود میں کون سا نظام؟ نوری ہے یا ناری نظام؟ ہم دن رات کے جذبوں کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نوری جذبے ہیں یا ناری جذبے ہیں؟ ہمارے جذبے کیا ہیں اندر، نوری ہیں یا ناری ہیں؟ کون سے جذبے ایسے ہیں جن رات ان جذبوں کے تحت ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ جادوگر ہیں، ہمیں اپنا جادو نظر نہیں آتا کہ میرا جادو کیا ہے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جادوگر ہیں، مجھے اپنا جادو نظر نہیں آتا، مجھے اپنے جذبے نظر نہیں آتے کہ میرے دل میں لوگوں کے لیے کیا جذبے ہیں، مخالفوں کے لیے کیا جذبے ہیں، جس سے مجھے نفرت ہے اس کے لیے کیا جذبے ہیں، جس نے مجھے کبھی کسی شکل میں کوئی تکلیف ناگواری چھوٹی سی بھی پہنچائی ہے، میرے دل میں اس کے لیے کیا جذبے ہیں۔ یہ جو نوری دنیا ہے یہ نیک جذبوں کی دنیا ہے، اور جو ناری دنیا ہے یہ ایسا جذبہ جس میں کینہ، جس میں بغض، جس میں حسد، جس میں انتقام، جس میں کالی دنیا، کالا جادو، یہ سارا ناری دنیا ہے۔ کہا میں گرو کے ساتھ چل پڑا، 17-18 دن کا سفر ہے، اور 17-18 دن کے سفر میں روز کے جو اس نے یا لطیف و یا ودود کے جلوے بتائے کہ یا لطیف، دیکھو لطیف کہتے ہیں ایسٹل ورڈ کو، وہ کائنات کا نظام جو نظر نہ آئے، کائنات کا وہ نظام جو نظر نہ آئے۔ عذاب قبر جانور کو نظر آتا ہے، انسان جنات کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، انسانوں کو عذاب قبر نظر نہیں آتا، ثواب نظر نہیں آتا، اترتی ہوئی رحمت نظر نہیں آتی، اترتا ہوا عذاب نظر نہیں آتا، اترتی ہوئی بلائیں، وبائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات نظر نہیں آتے۔ یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کی مقدر و نصیب کیا ہے، اس کا وقت ہے یا نہیں، اس کی زندگی میں ٹھوکریں ہیں یا یہ در در کا بھکاری، سائل، محتاج اور منگتا بنے گا۔ یہ کائنات کا خفیہ نظام ہے۔ ماذا تکسب غدا بأی ارض تموت، کل کیا ہوگا، یہ کائنات وہ نظام ہے جو میری آپ کی عقل میں نہیں، اور کس جگہ موت آئے گی کوئی خبر نہیں۔ اس نے مجھے ایک صاحب اپنی نانی کا واقعہ سنانے لگے، بیٹھی ہوئی تھی 250-300 کلومیٹر دور، اور ایک دم اچانک پریشان ہونے کہنے لگی مجھے میرے بیٹے کے پاس پہنچاؤ، اور بیٹا بھی وہ جس نے ماں کو کبھی پوچھا نہیں۔ غربت میں ماں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا تھا، پھر بیٹے کا عروج آ گیا، اور عروج کے بعد اس نے ماں کو کبھی پوچھا نہیں۔ کہنے لگے مجھے اس کے پاس لے جاؤ، کہنے لگے آپ تو خود کہتی تھی کہ مجھے اس کا چہرہ نہ دکھاؤ۔ کہا نہیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے آپ سے بیٹے سے ملنا ہے۔ فوراً بیٹے کے پاس لے گئے، 2 دن بیٹے کے پاس رہنے کے بعد مر گئیں، اور بیٹے نے کہا کہ اماں اگر آپ میرے علاقے میں آئی ہیں، مر گئی ہیں، تو پھر موت یہیں، اس کی قبر بھی وہیں بن گئی، کہاں دفن ہونا ہے یہ اس کا علم ہے۔ کائنات کے خفیہ علوم ہیں، ریمیا، کیمیا، ادیمیا، سیمیا، کائنات کے خفیہ علوم، عادات کے علوم ہیں، جفر کے علوم ہیں، علم کے علوم ہیں،
सोना बनाने के इल्म है, जड़ी बूटियां बोलती हैं खुद। कायनात के खुफिया इल्म है कि जमीन के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है, जमीन और आसमान के दरमियान निजाम क्या है। कायनात के खुफिया उलूम है, समंदर में क्या है, समंदर का कौन सा हिस्सा है जो जहाज भी निकल जाता है, लोहे की हर चीज भी निकल जाता है। समंदर का वो कौन सा हिस्सा है कि उसके ऊपर से आज तक कोई गुजरी चीज वापस नहीं आई। ये सारा का सारा लतीफ है, या लतीफो है। वो निजाम जो नजर नहीं आता, वो निजाम जो समझ नहीं आता, वो निजाम जो अकल में नहीं, वो निजाम जो शऊर में नहीं, वो निजाम जो विजदान में नहीं, ये सारा का सारा लतीफ है। और जब बंदा पढ़ता है ना या लतीफो, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, जब बंदा या लतीफो पढ़ता है, कायनात के सरबस्ता और खुफिया राज और कायनात की ये खुफिया चीजें सारी की सारी अल्लाह पाक उसके सामने ला के खड़ी कर देते हैं। कहते हैं बंदा बस थोड़ी सी मेहनत कर ले, ये सारी जहान खुफिया ये लोगों के लिए है। ये आंखों से जिन्नात का नजर ना आना लोगों के लिए है, मैं जिससे चाहूं पर्दा हटा दूं। जिन्नात का नजर ना आना लोगों के लिए है, मैं जिससे चाहे पर्दा हटा दूं। देखें, मैं पर्दा हटाने के बाद अभी आपके सामने पर्दा एक चीज का हटा देता हूं। आप देखते हैं कि एक छोटी सी मिट्टी है, थोड़ी सी खून का कतरा है, गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन खुर्दबीन उसके ऊपर से पर्दे हटा देती है। खुर्दबीन में जब देखते हैं खून के उस कतरे को, वो सिर्फ खून का कतरा नहीं, उसके अंदर एक जहान है। खून के कतरों में एक जहान है, उसमें कितने WBCs हैं, कितने RBCs हैं, कितना प्लाज्मा है और कितना सीरम है और कितना क्या चीज है। वो एक पूरा जहान है खून के कतरों का। खून के कतरे के अंदर आपकी जो है एक छोटी सी मशीन ने उस खून के कतरे के अंदर के निजाम को एक पल में खोल के रख दिया आपकी आंख के सामने। या लतीफो जब बंदा पढ़ता है, कायनात के राज और कायनात की दुनिया उसके सामने एक पल में ऐसे खुल जाती है, एक पल में ऐसे खुल जाती है। ये जितने भी कश्फ की दुनिया के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, दिल की बातें बता देते हैं, इन सब के कश्फ की दुनिया के वजूद में या लतीफ इब्तदाई चीज है। उसके बाद फिर अगले उलूम, मज़ाहिर, मनाजिर, आयात, अल्फाज सब मुबारक, मोतबर, मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, मुहतरम, लेकिन उनके पीछे वजूद में या लतीफो कायनात की चाबी है, खुफिया उलूम की, खुफिया खजानों की। मनाम, ख्वाबों के अंदर उन खजानों का दिखाई देना, ये मेरे घर के नीचे या फलां वीराने में या फलां जगह बहुत बड़ा खजाना है। सोना कितना है, हीरे कितने हैं, जवाहरात कितने हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आप काली थैली के नाम पे कौन से उलूम अपने अंदर जज्ब कर रहे हैं? आप काली थैली के नाम पे एक सफेद पहाड़ जज्ब कर रहे हैं, एक सब पहाड़ जज्ब कर रहे हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं। आप आज की ये 11 जुमेरात, जिसकी दूसरी जुमेरात है, इस जुमेरात के नाम पे कायनात के कौन से उलूम को दावत दे रहे हैं और कौन सी दुनिया को दावत दे रहे हैं कि वो जो गुरु था जिसने सारी दुनिया के उलूम इकट्ठे किए और खैर और नूर के इल्म को हासिल किया, और खैर और नूर के इल्म की दो चाबियां दी। एक चाबी थी या लतीफो और दूसरी थी या वदूदो। या एक ही चाबी थी और एक ही चाबी के दो दंदाने थे, एक का नाम था या लतीफो और दूसरे का नाम था या वदूदो। आप देखें तो सही, आप चंद लम्हों की इस मेहनत में, थोड़ी सी इस मेहनत में कितनी रूह की मनाजिल तय कर रहे हैं, कितनी खैर की सीढ़ियां तय कर रहे हैं, कितना तरक्की और दराजात को उरूज तय कर रहे हैं। यही अमल इनफिरादी करें किसी बहुत बड़े उस्ताद, किसी बहुत बड़े आमिल कामिल की जेर निगरानी, लेकिन यही अमल चंद ही लम्हों में, जुमेरात की हाजिरियों में आप लाते हैं थैली, और थैली के ऊपर अमल थोड़ी देर करते हैं, और वो दो खैर के पहाड़ हैं जिन पहाड़ों के अंदर रिस्क पोशीदा है, खजाने पोशीदा हैं, दौलत पोशीदा है, इल्म पोशीदा है। जमरत, याकूत, मरजान, लाल, जवाहिर इन दो लफ्जों के अंदर पोशीदा। और फिर कायनात के खुफिया उलूम, ऐसे उलूम जो इंसानी अकल उनसे मावरा है। ये कुछ माहिरीन थे जो अपनी उस दौर के आलात से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये बाबा जी एक दिन इन्होंने हल जोया था अपने बैल से हल, और दूसरे दिन उन हलों को बीज डाल के पानी लगा रहे थे। इन्होंने हल वाले दिन उनसे कहा, देखो बात सुनो, तुम लगता है फलां सिमत को तलाश कर रहे हैं। उसने देहाती उस बंदे को देखा जो कोई बूढ़ा भी नहीं है,
हाँ हाँ हम वही सिम तलाश कर रहे हैं। कहा वो सिम तो कोई मसला ही नहीं है। एक शाख को तोड़ा, उसको दो हिस्से किया, एक को इधर रखा, एक को इधर रखा, उसके दरमियान से ऐसे हाथ मारा, वो सिम सीधी की सीधी वहां जाके पहुंची। कहा यही तलाश कर रहे हैं। कहा हमें तो जिंदगी गुजर गई है तलाश करते करते। अच्छा, उसके बाद वो साहब फिर, जिनको वो बाबा जी कहते थे जबकि वो जवान थे, वो बाबा जी फिर से अपने काम में मशगूल हो गए। उन्होंने जाके अपने अफसर से कहा, अंग्रेज अफसर से, एक बाबा जी ऐसे हैं, जवान से हैं, उन्होंने हमारी मंजिल आसान कर दी और ये किया। खास को बुलाओ, लगता है कि उसके पास खुफिया उलूम है, उसको बुलाओ। उसके पास दूसरे दिन उसको बुलाने भेजा तो उसने कहा जिसको जरूरत है यहां आए, मैंने लंगर चलाना है, दुर्वेश मेरे पास आते हैं, मैंने कल बीज बोया है, हल चलाया है, आज उसको पानी दे रहा हूं, बैल जुते हुए हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा सारा बीज जमीन खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसने जाके उन्होंने अपने अफसर से कहा कि वो तो ऐसे कहते हैं। उसने पुलिस का दस्ता भेजा उस दौर का, कहा कि उसे गिरफ्तार करके ले आओ। जब इन्होंने देखा, अब ये पानी लगाया हुआ इन्होंने देखा कि वो गए तो इनके उलूम ने बताया कि अब ये होने वाला है, ये मुतमईन है। तो देखा कि दूर से दस्ता आ रहा है, इन्होंने एक ठीकरी उठाई, उसमें पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में डाल दिया। कुएं का हर कूसा जो आता था, जो लोटी लोटा आता था जिसमें पानी भर के आता था, हर कूजे में सिपाही आ रहा है, हर कूजे के अंदर से सिपाही आ रहा। अब जो आए तो देखा तो इतने बड़े सिपाही, उनके पास असला, इतनी फौज, वो डर गए। कहा गिरफ्तार करने आए हो? एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी है, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी। और वो खौफ के मारे चले गए, डर गए, चले गए। उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर इस सारे अमल का जो राज लिखा है और उस अमल की तरकीब लिखी है। कहा कि ये अमल मुझे कहां से मिला, कैसे मिला, इस अमल के राज की जो चाबी लिखी है उसको या लतीफो लिखा है। ये छोटा सा अमल है, या लतीफो या वदूदो। जो कायनात के खुफिया निजाम है वो या लतीफो के अंदर है, और जो कायनात के जाहिरी निजाम है, जो नजर आते हैं, फल नजर आते हैं, परिंदे नजर आते हैं, मोहब्बत और नफरत नजर आती है, इंसान जानवर नजर आते हैं, फरिश्ते और जिन्नात नजर नहीं आते, या लतीफों का कमाल है। जो नजर आती हैं चीजें, लोगों का आना और जाना, उरूज और जवाल, बीमार और सेहत, तकलीफ, मर्ज, जादू, उसका असर, जिंदगी में कर्ज, खुशहाली, जो कायनात में चीजें नजर आती हैं ये सारी वजूद हैं। जो नजर नहीं आती ये सारी लतीफ हैं, ये सारी लतीफ है। और याद रखना, जो लाम है ना, जो लाम है, ये लाम हमेशा उसूल है। ये लाम तलवार वाक़ई हुई है और अलिफ तलवार वाक़ई हुई है। ये लाम है, जब हम या के साथ अलिफ मिलाते हैं, या और अलिफ मिलाते हैं, ये तलवार बन जाती है जादू के लिए, जिन्नात के लिए, नजर बद के लिए, असरात के लिए, नाकामियों के लिए, ऐसी चीजें जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। कभी आपने सोचा वजीफा पढ़ने के बाद चीज क्यों मिल जाती है, इससे पहले चीज क्यों नहीं मिलती? आंखों के सामने वो कायनात की शयातीन और चीजों ने पर्दे दे दिए होते हैं। वो चीज आप कहते हैं मैंने 7 दफा इसी अलमारी को, इसी दराज को पहले छाना था, उसी अलमारी उसी दरवाजे से, दराज में से वो चीज मिली, या रखी यहां है, पड़ी वहां है, मिली कहां है? मैंने तो नहीं रखी थी, वो कहां गई? मेरी जेब से पैसे निकल गए, मेरी अलमारी से पैसे थे, चाबी मेरे पास है, इतने थे, इतने नहीं पड़े, इतने पड़े हैं, सोना इतना रखा है, इतना नहीं पड़ा, इतना पड़ा है। ये क्या है? ये आंखों के सामने पर्दे दे देते हैं, इसको हिजाबुल अब्सार कहते हैं। अब्सार बसर को कहते हैं, आंखों के सामने पर्दे आ जाते हैं, चीज होती है लेकिन नजर नहीं आती। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की ताकत है, ये उन पर्दों को एक पल में से हटा देता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला आमिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला कामिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला हैरत अंगेज तौर पे साहिब तस्खीर बन जाता है। और या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला जिंदगी में ऐसे हैरत अंगेज रूहानी दुनिया पाता है, रूहानी उलूम पाता है, रूहानी लताइफ और कमालात पाता है, जो आम इंसानी की अकल तो सोच गुमान में मावरा है। इंसान सोच ही नहीं सकता क्या ये भी कोई दुनिया होती है, या दुनिया में ये भी कोई निजाम है। इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता, गुमान ही नहीं कर सकता।